अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आज हमारे इंस्टीट्यूट में एहतमाम किया गया इस टीम एग्ज़िबिशन के हवाले से और जो बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। इस टीम बेसिकली है क्या और what is the huge difference between the STEM and STEAM? We are going to show you all activities regarding the projects, and you will be admired because in a science area we have the practical work, but in arts and commerce we have the limitations. But I'm proud of my students, my faculty, my administration, and the education minister, education secretary, and RD. So here we go, and you will see the drastical difference between the science exhibition and the other faculty. You might be compare between them, and now the ceremony is going. So let's have a look. अब मैं मोहतरमा प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया दासमीन साहिबा की इजाज़त से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करती हूँ। तो तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाती हैं सेक्रेटरी कॉमर्स से राबिया मंसूर। والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم مقمحون أم لم تنذرهم لا يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم तर्जुमा यासीन कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान गाज़ी को मेहरबान का नाज़िल किया हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है तो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक और वो ठोड़ियों में फंसे हुए हैं तो उनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और पीछे भी। फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते और तुम उनको खबरदार करो या ना करो वो ईमान नहीं लाएंगे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए आएंगे। आएंगी उसवा फर्स्ट ईयर कॉमर्स से।
उस वक्त वही रह गई हम दो सलाम अल्लाह अल्लाह का दो कयाम अल्लाह अल्लाह का दो सलाम अल्लाह वही रह गई हम उसी दर्दे अपनी जबी रह गई जिस गया वो सानी रह गई दिल वही रह गया वही रह गई हम उसी ज़ायदा फरीदी प्रिंसिपल डिग्री साइंस कॉलेज को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स के मज़ामीन पर मुश्तमिल तालीमी निज़ाम स्टीम एजुकेशन कहलाता है। स्टीम एजुकेशन की अहमियत, ज़रूरत और मकासद पर प्रेजेंटेशन देने के लिए तशरीफ लाती हैं प्रोफेसर फौजिया आसिफ साहिबा। आपका ताल्लुक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से है। आज हमने जो स्टीम की एग्जीबिशन की है उसके बारे में जो प्रेजेंटेशन हमने रखी है तो उसके अंदर हमने बताने की कोशिश की है कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रोजेक्ट का क्या पर्पज है कि आपके लिए किस तरह आपके सिलेबस से किस तरह एंगेज है और किस तरह आपको फर्दर जो आपकी स्टडीज है जो कि आप किताबों में पढ़ते हैं उसको आप किस तरह उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो व्हाट इज स्टीम? स्टीम बेसिकली STEAM is an educational approach to learning that uses science, technology, engineering, the arts, and mathematics to access point for guiding students in poetic dialogues and practical thinking. STEAM stands for science, technology, engineering, arts, and mathematics. Objectives of STEAM to support creativity, innovation, and interpretation to all levels of education and training, which is placed on the basis of sustainable economic development to increase individual critical competencies, interpretation, and cultural awareness. The importance of STEAM in education. The importance of STEAM education cannot be underestimated. Integrating unsubject STEAM in education. The STEAM education cannot be underestimated. Integrating arts subject with technical and scientific ones is pivotal to reforms. Basic education in elementary and secondary schools mainly about establishing a good foundation for higher learning and aspiration towards science courses, whether for purely academic or for practical purposes, require a strong foundation in science and mathematics. Challenges to the teacher. Create a project that investigates the difficulties in key subject areas and engage your students in creatively demonstrating this knowledge to the school's community in the form of visual display. How can we
be a part of a, how can we be involved? Pictures may develop and exhibits a lesson. Effect from the group. With an academic classrooms, a home rooms, and extracurricular student group and independent study, or another projects are only referred to the project and projects. Thank you. वो कुछ इस तरह से हैं। इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, पाकिस्तान स्टडीज, सोशियोलॉजी, कॉमर्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी साइंस, होम इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और इस्लामिक हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज की इस एग्जीबिशन में जिस प्रोजेक्ट को डिस्प्ले किया जा रहा है उनमें मुंसफीन का किरदार अदा करेंगी। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर शैला जमाल साहिबा से मुंतजिर हूँ कि आप स्टेज पर आएं और इस एग्जीबिशन के रूल्स एंड रेगुलेशन पर रोशनी डालें। डॉक्टर प्रोफेसर फौजिया परवीन ने ये जो प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में इंतजाम किया है वो बहुत ही काबिल तहसीन है और साथ में अपने बराबर कॉलेज की प्रिंसिपल जहरा साहिबा की भी मशहूर हूँ, वो यहाँ तशरीफ लाई है। मुझे यहाँ बुलाया गया है स्टेज पर कि मैं आज का जो प्रोग्राम है उसके कुछ है क्या और इसको हम कैसे जज करेंगे, क्योंकि मैं जज की टीम में शामिल हूँ। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ये कि स्टीम या स्टेम साइंटिफिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, यानी इसमें हमारे सारे डिसिप्लिन शामिल हैं। ठीक है, तो कराची के सारे कॉलेजेस इसमें आ जाते हैं और आप सबको एक क्राइटेरिया दिया गया कि आप सब अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाएं। आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, हम इन्हें जिस बेस पे जज कर रहे हैं उसके कुछ हमने रूल्स बनाए हैं और उस जजमेंट क्राइटेरिया को हम रूब्रिक कहते हैं, RUBRIC। ठीक है, अब ये जो आपका ये फर्स्ट लेवल है जिस लेवल पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो जज किया जा रहा है, इस लेवल में आपके पास 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इसमें से आपको 20% या 20 मार्क्स दिए जाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट कितना इनोवेटिव है, कितनी जिद्दत है इसमें, आपने क्या आइडिया पेश किया है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी साइंटिफिक या किसी काम में, असाइनमेंट में जिद्दत को, इनोवेशन को सबसे ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। तो आपका जो असाइनमेंट है जाहिर है इसमें हिस्ट्री भी है, इस्लामिक हिस्ट्री है, होम इकोनॉमिक्स है और दूसरे सब्जेक्ट हैं। अब वो टॉपिक्स तो हमारे पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमें देखना है वो देखना है कि आपने किस तरह उसको नए अंदाज में पेश किया है। तो ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपके इस इनोवेशन के होंगे और जिसका जितना ये पॉइंट अहम होगा और समझे कि पूरे 100 मार्क्स में से सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनोवेशन होनी चाहिए। जितना कम होगी इसमें जिद्दत, उसमें से आपके पॉइंट्स जो है वो लेस होते जाएंगे। सेकंड है साइंटिफिक रिगर एंड एक्यूरेसी। जाहिर है हम साइंटिफिक दौर में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, कितना आपने अपने इस प्रोजेक्ट को साइंटिफिकली पेश किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस्लामिक हिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में उन्होंने बैटल दिखाई है, ग़ज़वा उहद। उसमें उन्होंने बैटल फील्ड जो हमें दिखाई है तो उसमें उन्होंने मैपिंग की है, उसमें हमें उन्होंने माउंट भी बताया, उसमें आर्चर्स बताया, उन्होंने वेल भी बताया कि किस तरह ये जंग लड़ी गई थी। अब हमारे जहन में वो आइडिया आ गया कि ये बैटल फील्ड थी और ये पॉइंट्स हैं। तो यानी आपको अपनी बात पेश करने के लिए क्या चाहिए, साइंटिफिक वे चाहिए, ठीक है, नया तरीका चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है वो आपका इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसमें कि आपका प्रोजेक्ट किसी दूसरे
या जितने हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथ, इससे रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग पेश कर रहे हैं या आप कॉमर्स का कोई प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं या होमियोग्राफिक्स है, तो खाली ये नहीं बस होमियोग्राफिक्स पे कंसर्न कर रहा है, नहीं, इसकी आप क्या बताइए, यूटिलिटी बताइए, इसका दूसरे से लिंक क्या है, इसका फायदा क्या है, और ये किस तरह हम एक सब्जेक्ट को दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। मतलब उसमें साइंस शामिल हो सकती है, उसमें मैथ्स भी शामिल हो सकता है, आर्ट तो है ही, आर्ट आपकी प्रेजेंटेशन है कि आप किस तरह अपनी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ खाली अपने सब्जेक्ट पे ही कंसंट्रेट ना करे, बल्कि दूसरों से भी वो लिंक होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका जो प्रोजेक्ट है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कितना प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने हमें बैंकिंग का एक मॉडल दिखाया। अब आपके लिए बहुत अच्छा मॉडल है। अब बैंक में जाते हैं, इस काउंटर पर ये है, इस काउंटर पर ये है, यहाँ ये काउंटर बने हुए हैं, आप कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं खाली आपने एक बैंक लिख दिया, नहीं, यहाँ बच्चों ने जो मॉडल बनाया बैंक का, पूरा बैंक बताकर समझाया गया, यानी इसकी प्रैक्टिकलिटी है, उसका कोई काम है, यूजलेस नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रेजेंटेशन तो बहुत अहम है, कितना प्रेजेंटेशन आपने अच्छी की है, सादा सा लेकर रख दिया, कलर्स यूज किए हैं, मॉडल्स बनाए हैं, और मॉडल्स भी जो हो वो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, तो वो ज्यादा अपील करते हैं हमें, मतलब हमें देखते ही समझ में आ जाता है ये कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। सिंगल हैंडेड तो कोई काम नहीं हो सकता, इंडिविजुअल जो है वो काम करके दिखा दे अपना, लेकिन जब तक टीम वर्क नहीं होगा वो प्रोजेक्ट नहीं समझा जाए। तो जितने बच्चे इसमें शामिल हैं, टीचर का कंट्रीब्यूशन है, किसी प्रोजेक्ट में 2 सब्जेक्ट शामिल हैं, किसी में स्टूडेंट ज्यादा है, किसी में टीचर ज्यादा है, तो सबने एक टीम वर्क किया है और उसको हम जज करेंगे। लास्ट है इम्पैक्ट एंड पोटेंशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट। क्या आपका प्रोजेक्ट और डेवलप हो सकता है, इसको हम और एनहेंस कर सकते हैं, इसमें और कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, इसको फर्दर मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है या नहीं, आपने इतना अच्छा नहीं किया, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, इसमें अगर आपको और फैसिलिटीज दी जाए तो इसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास 7। इन पॉइंट्स की बेस पर हम आपके आज के इस रूब्रिक के प्रोजेक्ट को जज करने वाले हैं, और ज़ाहिर है 1 2 3 हमें जो है वो जज करना है कौन सा प्रोजेक्ट 1 2 3 है, लेकिन मेहनत सबने की है। अब देखते हैं कि आप में से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन कौन लेता है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही आज प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया परवीन इमरान साहबा ने कि आप हमारी आज की मेहमान प्रिंसिपल को हुनर पेश करेंगे। गवर्नमेंट की एक मरतबा फिर हम प्रिंसिपल मैडम जायदा परवीन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की सलाहियतों की जांच के लिए प्रिंसिपल साहिबा ने तालिबान को ये चैलेंज दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम इसमें कामयाब रहे। अब मैं प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फातिया साहिबा से और प्रिंसिपल जायदा परवीन साहिबा से मुंतवी प्रोजेक्ट और बाकायदा ये की हमारी दोनों सबीना से प्रोफेसर सबीना के दोनों प्रिंसिपल साहिबा को उस तरह आप बताइए कैसे माशाल्लाह
क्या होता है मनासिक हज से, कहाँ से आगाज होता है? मनासिक मिकात जो है वो मुकाम है जहाँ पर हाजी जो है वो अपना एहराम बांधते हैं और उम्रा करने जाते हैं, और इसी जगह से जो हमारा हज का आगाज जो है वो शुरू हुआ जाता है। देन फिर उसके बाद हम आते हैं 8 जुलाई को, हमने एहराम बांधना होता है और मीना की जानिब जाना होता है। मीना जो है वो मुकाम मीना वो मुकाम है जहाँ पर हम शैतान को ककड़ियाँ मारते हैं। फिर उसके बाद आता है मीना से हमें अरफात की जानिब जाना होता है, और हमारे आपसे लोगों ने की हदीस भी है अल-हज्जु अरफा, हज मैदान अरफात का नाम है। फिर उसके बाद आफ्ताब के बाद अरफात से जो है मुज़दलिफ़ा की जानिब जाते हैं। फिर उसके बाद जो 10 सूरज को जो है हम फजर की नमाज अदा करने के बाद मशअरुल हराम पहाड़ी में दामन में कबला रुक करके जो है वो दुआ मांगी जाती है। ये वो जगह है जहाँ पे एक मस्जिद भी है, मशअरुल हराम मस्जिद के नाम से ये जानी जाती है। जी अच्छा। इस पर आफ्ताब की बात आफ्ताब से कबल करके कहते हुए मीना जाना और वाक़ई मैसर से तेज़ी से गुजरना, फिर मीना से मक्का जाकर तवाफ़ अफ़ज़ा करना और ज़मज़म पीना, सफ़ा मरवा की सही करना। सफ़ा मरवा के दरमियान 3.5 किलोमीटर का फासला है और यह हज़रत हाजिर रज़ी अल्लाह अन्हा की सुन्नत यादगार भी है। और उसके बाद है मक्का से मीना वापस आकर अयाम तशरीफ़ गुजारना। इसके बाद है घर जाने से कबल तवाफ़ विदा करना, घर की जानिब रवानगी करना। 10 steps आते हैं। कुर्बानी का जहाज के जरिए आए हैं। जहाज से आए। ये टेक्नोलॉजी हमने यूज की है इन इस्लामिक स्टडीज। डिस्टेंस बताया है, या डिस्टेंस मैथमेटिक्स ये जो ना डिस्टेंस का जो है फिजिक्स में आ जाता है। जी जी, कि वहाँ उससे पहले साइंटिफिक रीजनिंग जो आप दी जा रही है वो यही बताई जा रही है। बेटा वो भी इस्लामी एंड ओवर देयर अच्छा الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو सबसे पहले तो जमीन पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए तो दुनिया आबाद हुई ना। हाँ अव्वल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, हिजरत मक्का है। सानी इमाम मालिक का नाम अहमद मिसाल है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात है। और जमात के साथ हज़रत फातिमा की विलादत और हज़रत अबू बकर की वफ़ात है। हर बच्चा मुहर्रम कहा जाता है। ठीक है, अब ये किसने बनाया शुक्र?
हाँ बताएं आप, इनको बताएं। हम शुक्र अदा कर सकते हैं, नमाज पढ़ के भी शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह ताला का, कुरान पढ़ के भी शुक्र अदा कर सकते हैं, तस्बीह पढ़ के भी शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, जैसे माँ बाप की हमारा ख्याल रखने के लिए, टीचर जो हमारा फ्यूचर को सही करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सत्या रोशनी के लिए, फूड खाना या हमारे खुराक को बढ़ाने के लिए, और एनिमल ये जिससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। एनिमल्स का हम गोश्त भी खा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिम बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें छोटी सी दुनिया भी दी है, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है। और कुरान में भी आया है अल्लाह ताला ने बहुत उसकी हक दी, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हक शुक्र तस्वीर ना कर रही हो। थोड़ा सा वेरी अगेन चलो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे इन्होंने, वहाँ जितने पूछे हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये मैं आपको ये बताऊंगी कि ये भगवान का दूसरा मार्चा था एंड 3 हिजरी साल शवाल को हुआ, जिसमें मुसलमानों की तरह 1,000 थे और मुसलमानों की तरह 3,000 थे। जब मुसलमानों का लश्कर जब मदीने से निकला तो उसमें डरा 1,000 थे, लेकिन मुनाफिकीन अलग हो गए, अलग हो गए, जिसकी वजह से 700 का लश्कर हो गया था, जिन्होंने 3,000 कुफार के साथ मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ये जंग जीत रहे थे। उसी दौरान इस पॉजिशन के इम्पोर्टेंट पोजिशन पे थे ना मुसलमान, वो वहाँ से हट गए। How does the now the fact is that how better by sharpened and inside and it that's there's जब संख्या जो फ्राई होती है वो जो हमारे प्लस में एक ग्लास होता है जिसका हम बनाते हैं, संख्या फ्राई जब इसको करते हैं तो हमारे गैसेस हमारा रशिंग आउट करता है, और रशिंग आउट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत रात में क्या होता है कि जब वापस आती है तो इसके अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं वो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से कि हमारा रात में भी हमारा टेम्परेचर वार्म रहता है, ना ज़्यादा कोल्ड होता है और ना ज़्यादा हॉट होता है। और जब ये गैसेस ज़्यादा अपनी इनकी ज़्यादा हो जाती है, इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी करके हम बर्निंग प्रोसेस को बदलते हैं, और जैसे खेल वगैरह चलाते हैं और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फैक्ट्री है तो इसलिए तो हुआ होता है, तो इस वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ में ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना बहुत जरूरी है। Okay, very good, very nice. And what about this? We are the Layers of atmosphere. Okay. So these are the layers you are showing. Okay, tell me. We are the model of the layers of atmosphere. The atmosphere is the thick blanket of air around the earth. Because हमारे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो रात को ज़्यादा ठंडा होता है एंड दिन में ज़्यादा हॉट होता है। So the atmosphere is the blanket of air around the earth, and it's a mixture of different gases like methane, 78% is carbon and 1% is carbon dioxide and 1% like methane, carbon, carbon dioxide. They are divided into troposphere and stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. So first layer is troposphere. It's the closest layer and like substance. It is closest to our Earth. Yes. This is our Earth. Yes. Right.
सबसे छोटी एंड सबसे क्रेजी लेयर है एंड इसमें हमारी लाइक हमारा जो वेदर फिनोमेना होता है, जो हमारी बारिश होता है, दिस इज द लेयर ऑफ द लाइक हमारे जो क्लाउड्स होते हैं वो इसमें होते हैं और हमारे जो ऑक्सीजन वगैरह होते हैं वो सब इससे होते हैं एंड इसके ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम होता है तो बिल्कुल ही नहीं। And it's extend about 0 to 10, and high is it's a second layer stratosphere, and stratosphere का जो temperature drop होता है वो -डिग्री सेल्सियस -80 90 डिग्री सेल्सियस होता है एंड इसमें हमारे जो प्लेन्स होते हैं वो सब फ्लाई करते हैं। इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है सबसे लोएस्ट पार्ट में एंड ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि हमारी अर्थ को यूवी जो सन से जो यूवी रे जाती है उसे प्रोटेक्ट करता है, हमारी अर्थ पूरा होता है। तो जब हमारी जो लेयर होती है सबसे कोल्ड होती है तो वो उसको ठंडा करता है। ठीक है। हाई टेम्परेचर होता है क्योंकि जो हमारी यूवी रेज आ रही होती है और एक्सरे आ रही होती है वो हमें हीट में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी हाइट होती है अबाउट 85 किलोमीटर to 600 किलोमीटर। राइट, तो सनलाइट जो है वो पास होकर इन लेयर्स से ऊपर आती है। ओके ओके, देन एंड हमारी जो लास्ट लेयर होती है वो होती है एग्जोस्फीयर। हमारी आउटरमोस्ट लेयर होती है और जो हमारी स्पेस में कनेक्ट कर रही होती है। ओके, एंड एग्जोस्फीयर की हाइट होती है अबाउट 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर। एंड इसमें गैसेस होती हैं दो किस्म की, लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। एंड ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम बनती है जो हमें सैटेलाइट से और हमारी जो अर्थ से हमें कम्युनिकेट करवा रही है। Whenever make a call, हम किसी से भी लॉन्ग डिस्टेंस बात करनी हो या किसी तो नहीं बात करने में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और ये सारी और हमारी तो आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? देर से हमें प्रॉब्लम्स आई हैं इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। क्या प्रॉब्लम? हार्मफुल यूवी सन रेज अल्ट्रावायलेट एक्सरे इन सबसे हमें प्रोटेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो जरा प्रोटेक्टेड रहे? Is there any method? Yeah. Plants? Yeah, good, good. वेरी गुड। प्लांट्स हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स Yes. हमें चाहिए हमारी एनवायरनमेंट में। ये वाला प्रोजेक्ट No, she answered very well. Plants, shajarkari. इसका जो इंटरनल मटेरियल होता है वो बहुत इसके अंदर बेसिक रॉड्स होते हैं। इसके अंदर जब हीट ज़्यादा तो इसकी वजह से कैसे है वो मटेरियल ख्याल से ज्यादा ना डाल देना हमारी जितनी मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में भी रख सकते हैं। जो होता है ये नेचर कहलाता है जिससे इरप्शन होती है एंड ये जो होता है ये नेचर कहलाता है जिससे इरप्शन होती है। जब इरप्शन हो जाती है तो जो हमारा जो लिक्विड फॉर्म में सब निकलता है वो सॉलिड हो जाता है एंड शाइनिंग फॉर्म में निकलता है। अगर जो शाइनिंग फॉर्म में होती है सबसे चीज़ नजर क्या होती है बिकॉज इसके अंदर जितने भी इसमें डायमंड जो है गोल्ड जो है इनमें सल्फर एंड जितने भी मेटल्स होते हैं सब इसमें लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं। दैन वो ये इसको इग्निस स्टॉप भी करते हैं।
Right? Very nice. What is this? And revolution is the movement of around the sun, around the sun, water. Now I am calling everyone also get it together. Everyone is here. So the radiation is when something spins around its own axis. For example, the Earth rotates on its axis, which is an imaginary line that goes from the north pole to the south pole. This spinning is caused day and night. When one side of the Earth faces the sun, it's daytime, and when it turns away, it's night. Now, I would like to invite Anina to come and elaborate revolution. I'm going to explain the revolution. So the revolution is when something moves around another object in a circular path. For instance, the Earth revolves around the sun. It takes about 65 days for the Earth to complete one full revolution with a clear space for visible. So Earth and Moon both are moving? Both revolution, no, sun was moving. Or sun is not movable, but these two things are moving, right? Sun is constant. Revolution में सिर्फ अर्थ होता है और इसमें ठीक है ज्योग्राफी प्रोजेक्ट से स्टार्ट है विभाग से इंटरनेशनल की बातें शुरू होती हैं आपके प्रोजेक्ट में So what you are showing in this cycle? मेमोरेबल फैमिली कैलेंडर जिसको मैंने एक साइंस में जगह लेके उसको एक बेस दिया जिसकी वजह से वो 360 के एंगल पे घूम सकता है इजीली जी You can continue, Samavya. Continue. हमारी कोलैबोरेशन साइंस विद जिससे हम मतलब साइंस भी इसके अंदर है What is the definition of science? Okay, what is the definition of arts? कलरफुल आर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं उसको कोई फालतू चीज़ है उसको क्रिएट कर सकते हैं उसकी कलर्स और चीज़ों से टाइम एंड माइंड मुसलमान जब जंजीर गए तो फिर उसके बाद क्या हुआ माले गनीमत उठाने लगे और फिर क्या हुआ बेटा ऐसा हुआ जो घाटी में तीरंदाज थे उन्होंने देखा जैसे माल गनीमत उठा रहे हैं तो नहीं वो नीचे उतर गया माले गनीमत उठाने के उन्होंने इम्पोर्टेंट प्लेस छोड़ दी जब इम्पोर्टेंट प्लेस छोड़ दी तो हजरत खालिद बिन वलीद टेक्निकली जंगी तौर पे बहुत आगे थे कदम ड्रामा गा गए और इस तरह से मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ 70 से लेके 80 तक मुसलमान जीती हुई जो है ना वो जंग हारी में जंग में जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई क्योंकि वो उन्होंने प्लानिंग पे फॉलो अमल नहीं किया तो इससे हमें क्या सबक मिलता है आपको फिल्म की हिदायत पर अमल करना हुक्म पे अमल करना चाहिए पैरवी करनी जी ये बताइए ये अच्छा ओके ये बताइए 8 lessons from the battle of wow मैंने आपको जैसे और के वाक़यात बताए मैं उनके लेसन आपके सामने पेश करना चाहती हूँ तो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं सब बात हमारा पहला लेसन ये कि हमें कभी भी
मुनाफिकीन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुनाफिकीन के कौल और फेल में हमेशा तजाद होता है। दूसरा हमारा लेसन ये है कि हमें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक चलना चाहिए। अगर हम उनके मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, जैसा कि हमने दस बार और भी हमने देखा कि मुनाफिक ठीक तीसरा लेसन ये है कि हमें अल्लाह ताला की मुसलमानों के फ्री मिलेगी हमेशा से जीत की गारंटी नहीं देते अल्लाह ताला, हार भी मुसलमानों को मुकद्दर में होती है। और चौथा हमारा लेसन है कि इसके बाद क्या रखें समझ के करना चाहिए और अल्लाह ताला से वोट हासिल करना चाहिए। छठा हमारा लेसन है कि लालच नहीं करना चाहिए। जैसे पार्टी के तीरंदाजों ने जो है लालच की माले गनीमत के नीचे उतर आए तो उनकी गैरमौजूदगी का फायदा खालिद बिन वलीद ने उठाया और पीछे से हमला किया। सातवां हमारा ऐसा है कि हमने पार्टी के तीरंदाजों को हज़रत ने बहुत बड़ी गलती माफ़ फरमाई, तो हमें भी इस तरह के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। लेसन ये है कि मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी, तो हमें भी गलतियाँ माफ़ करनी चाहिए। वेरी गुड। करीबी बंदों को आजमाता है ताकि उनका ईमान मजबूत हो सके। और ये लेसन ना सिर्फ पास्ट बल्कि फ्यूचर और प्रेजेंट में भी लागू प्रेजेंट फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। माशाल्लाह। इस थियरी को हमें हमेशा अप्लाई करना चाहिए अपनी करंट सिचुएशन में भी, और इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, डिसिप्लिन का, और जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उसको फॉलो करना, ओबे करना। वेरी गुड। कुरान पाक की सूरत में जो है ना अल्लाह ताला ने जो नाज़िल फरमाई है वो जंग अहद के बारे में सारा इसमें पूरी जंग अहद के हवाले से। जिसमें जिन लोगों में डिस्प्यूट थी, कुछ मुसलमान बाहर जंग करना चाहते थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तो ज़्यादा अक्सरियत की बात को फौकियत दी थी। और जिस नबी तरह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, तो फिर आप देखें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में इंच बराबर भी कमी की तो कितना बड़ा नुकसान है। बस थैंक यू बेटा। हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कागज की इजाज़त से पहले जो है वो इंसानों ने कौन कौन से राइटिंग मटीरियल जो है वो यूज़ किए लिखने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से क्ले टैबलेट से पूरा बेटा प्रेजेंट करना शुरू करें। और मेरा ताल्लुक लखनऊ से तो खाना बनाई जाती थी, चिपकी मिट्टी होता है उसे करके उसे भून कर उसको अलग अलग शेप देकर उसकी जबान की जाती थी, और जब वो सूख जाती थी ना तो उसको पक्की करने के लिए आग पर लगा कर बनाया जाता था। इसमें साइंस का भी मेथड यूज़ किया जा रहा है। वो पक्की की तरह पक्की। और ये जो है ना इसका आगाज़ कब से हुआ? इसका आगाज़ जो है 285 जो है वो BC में। और जो सबसे पहले है ना पहला बाबर के बादशाह जो नेपाल के महल से निकाली ये जो क्या बैराक का हिस्सा अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। हाँ मैडम को तो हमारी सब्जेक्ट ही है आप तो। मेरा भी ये हिस्ट्री का है सब्जेक्ट। बताइए बेटा। मेरा नाम सेक्रेटरी आप रिसर्च के डिपार्टमेंट से। ये हमने बनाई है सिकंदरिया लाइब्रेरी, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी पुराने ज़माने की। ये एक अजीम लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से ये मेरी दरसगाह भी नहीं जहाँ से दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए। और इसमें ना दुनिया का पहला जो है वो कैटलॉग भी तैयार किया गया था, दुनिया का पहला कैटलॉग भी तैयार किया गया था। और ये जो है पेपायरस की जो पेपायरस के किनारे एक दरख्त हुआ करता था, उसकी गुदे की छाल को निकाल कर भून कर दरिया के किनारे एक दिन भिगो कर रखा जाता, फिर अगले दिन उसको भून के एक पेपर शक्ल गोल गोल शक्ल दी जाती। उसके पेपायरस ये पेपर। इसके बाद ये टेक्नोलॉजी है जी। और ये बाकायदा बच्चों ने शीट बनाई है पेपायरस जो है ना ये पेपर होता था जिसका खास दरख्त होता था, दरख्त से जो है वो नहीं वो दरख्त से हमने पूरे आटे को और गोंद को मिक्स करके पूरा उसको एक दिन के लिए सुखाने के लिए रखा तो बन जाती थी इस तरह से शीट बन जाती। ठीक है। ये क्या है?
ये इसके बाद का सबसे पहले ये भी 285 की एरा है, सही है इसका भी। तो रोम ने जान की थी पार्चमेंट, क्योंकि मिस्र वालों ने रोम वालों को पार्चमेंट को मुकाया देने से मना कर दिया था कि उनको तरह मुश्किलात होने लगी, तो उसी मुश्किलात को हल करने के लिए रोम वालों ने पार्चमेंट जान की। अच्छा, इसमें क्या टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी है इसको जानवरों की खालों से बनाया जाता है। ओके, और ये कौन सी लैंग्वेज है? रोमन लैंग्वेज। रोमन लैंग्वेज है, रोम ने जान की थी। दिस इज अ रोमन लैंग्वेज। और रोमन वो पहले लोग थे पता है जिन्होंने किताब थी, उन्होंने पार्चमेंट एक मजबूत और पायदार लिखने वाला मवाद था। उसको जानवरों की खाल को साफ करके उस पर नमकियात लगाकर सुखाया जाता था और वो बड़े बड़े ना टुकड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेती थी और उसके बाद उसको लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जो हमारी आज किताब की शक्ल है वो भी रोम वालों ने ही जानी है। मिस, ये मोहनजोदड़ो से बात की है या पहले की? बहुत बात की है। वो तो 3500 कबल मसीह के आए मोहनजोदड़ो की तारीख तो सबसे पहले की। मैडम को सही पता होगा, अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन वो मटीरियल जो है ना उन्होंने जो है वो आयरन पे पत्थरों पे। अच्छा, सिविलाइजेशन तो वहाँ से हो चुकी है ना, राइटिंग हो चुकी है। हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन सिविलाइजेशन और राइटिंग ना इंडस वैली का आप देखिए, स्टोपा में देखिए कुछ लिखा हुआ पाया गया। मतलब आप से ज्यादा जहाँ पर ये चीजें बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है। इंडस सिविलाइजेशन तो सब दुनिया की तारीख है। आपके पास यू आर द लकीएस्ट, आप उस हेरिटेज के बारे में। ठीक है, और इंडस किसको कहते हैं? सिंध को। जी मैं पढ़ाती रहती हूँ। वैसे पता है सारी तहजीबें ना मुझे दरिया के किनारे ही होती हैं। वो जैसे दरिया नील के किनारे की है। क्यों इसलिए होती है? सिविलाइजेशन होती दरिया के किनारे। हाँ, लाइव फ्रेश वाटर। मेरा नाम अलीशा इकबाल है, मैं फर्स्ट आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। आज हम आपके सामने एक कागज की किताबों से उसको डिजिटल लाइब्रेरी का मॉडल पेश कर रहे हैं। अच्छा, डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल तो ये है ना बेटा, ये मॉडर्न लाइब्रेरी कागज। अच्छा, जिस तरह इंसान ने ज़रा तरीके के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन अपनाए, उसी तरह जैसे टैबलेट पे सबसे पहले उसी की तख्तियों पे किताब लिखी, फिर उसके बाद कागज पर, उसके बाद पार्चमेंट पर, उसके बाद कागज पर उसकी तारीफ। और चूँकि इंसान के कागज पे क्योंकि इंसान के अंदर जिस और तकनीक का असर होता है और इसलिए फिर कागज सबसे पहले चीन में ईजाद हुआ। चीनियों ने ईजाद किया। रिसाइलर नामी एक चीनी था, उसने पुराने फटे पुराने कपड़ों पर और माहीगीरों के पुराने जाल होते हैं उसको जला बुला के उससे कागज ईजाद किया और वो उस तजुर्बे में कामयाब रहा। उससे फिर उसने कागज ईजाद किया, फिर हमारा ये कागज ईजाद किया। फिर कागज किस चीज़ से बनता है? किस मटीरियल से? फटे पुराने कपड़े थे, दरख्तों की छालों से, गोदे से। बेसिकली माहीगीरों के जो पुराने जाल होते हैं ना उनको जला बुला के उनको बना के उससे कागज ईजाद हुआ। अब now we have reached दिस इज मॉडर्न एरा। ये मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी का मॉडल है। डिजिटल लाइब्रेरी से मुराद बेसिक ऑनलाइन लाइब्रेरी। इसके अंदर कंप्यूटर और इंटरनेट इसकी खास बुनियादें होती हैं। अब हमारी जो लाइब्रेरी हो किसी दीवार या कॉपी अपनी बताई नहीं रही है। आपको एक क्लिक पे हम कहीं पे इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन हो हम लाइब्रेरी में सही से कनेक्ट किसी आपने घर में डिजिटल लाइब्रेरी देख सकती हैं अपने घर में बैठ के। आईपैड में देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब ये कि आपको जो है ना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर में भी ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। इसका यही पर्पस है। क्या अब ये डिजिटल लाइब्रेरी मेरे पास मौजूद होती है, मेरे पास मोबाइल में मौजूद होती है। दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, किसी भी सूरत कैसी भी हो, मैं हासिल कर सकती हूँ। इसमें हमें टेक्नोलॉजी को कहते क्या है? किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर से? इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट के जरिए कोई नाम होता है इसका? पर्टिकुलर नाम पूछ रही हैं?
डिजिटल लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी कहते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, ई किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। Nice. Good, very nice project, very nice. Step by step, digital library. Even like this, this must be the winning project. बहुत जबरदस्त है आपका। कैसा लगा? बहुत अच्छा। नजर तो नहीं आ रहा? खुश हो? कल्चर एक बड़ा टॉपिक है, तो हमने बस चालू तो है, बैठे हुए फ्री है ना, खड़े कल्चर इसकी आपने जो हमारी नजरियात, हमारे जो फन, हमारे रस्मों रिवाज होते हैं हमारे, रस्मों रिवाज Religious based ideology. जी, ये सब मिला के कल्चर बनता है। और इसी वजह से कल्चर हमने पाकिस्तान इसी रिलीजियस बेस्ड आइडियोलॉजी पर हासिल किया ना कि हमारा हिंदू से कल्चर हमारा डिफरेंट था और हम उस कल्चर में मर्ज नहीं कर पा रहे थे। हमें सोसाइटी में मूव करने के लिए मसाइल का सामना करना पड़ा था, रस्मात एक जैसी रस्मात नहीं होती थी। तो इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने दो नजरिया आइडियोलॉजी दो में नजरिया पेश किया कि दोनों को में अलग है, सकाफत अलग है, जुबान अलग है, तो हमें पाकिस्तान चाहिए। इसी बुनियाद पे पाकिस्तान आइडियोलॉजी सचिन तो ना इम्पोर्टेंट है। टोपी देखिए, जबरदस्त जबरदस्त। मेरा नाम आयशा बेगी है और मैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स से हूँ। सबसे पहले हमने एक तरीका दिखाया कि कैसे हमारे पास चीज़ों का एक्सचेंज। सबसे पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में हमारे पास ये होता था कि लोगों को चीज़ों का तबादला करना। बार्टर सिस्टम कौन से जमाने में होता था? 5000 BC कबल मसीह। तो उसके बाद हमें लोगों को चीज़ों का तबादला करते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ चाहिए तो मैं किसी और के पास जाऊँगी कि मुझे चीज़ चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इसमें हमारे पास टाइम बहुत लगता था और ये कन्वीनियंट भी था। हमें जो चीज़ चाहिए उसकी बंदे के पास है और उसको चीज़ चाहिए जो हमारा जिस चीज़ का तबादला करें, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। उसके बाद हम स्विच हुए थे मेटलिक कॉइन्स में। 700 BC में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे मेटलिक कॉइन्स। ये हमारे पास नेचुरल एलिमेंट से बनते थे, अलॉय, मेटल, गोल्ड और सिल्वर। ये तीन चार चीज़ें हम ये बनाया था। ये भी टाइम इस तरह से हमारे पास सिंपल ये था कि ये घिस जाते थे, क्योंकि मेटल था वो यूज करते करते घिस जाता था और उसकी वैल्यू जो है वो कम होती थी। इस वजह से ये भी हमारे पास एक अपने दौर में ये बहुत ज़्यादा सही था, लेकिन उसके बाद आगे आने वाले वक्तों में हमारे पास सही साबित नहीं होगी। घिस जाने की वजह है जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका मतलब इंडिया में सिल्वर कौन सा था वेल्यूबल था ना, अवेलेबल नहीं होता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जमाने में मेटल को जो है सिल्वर की बजाय उन्होंने कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस की। कॉपर इज अ वेरी कॉमन मेटल, अवेलेबल कॉमनली, so that's why some metals are not commonly available in the market. उसमें हमारे पास जो अवेलेबल थे हमने उसी के जरिए हमने मेटलिक कॉइन्स को जाना। उसके बाद ये है पेपर मनी आते हैं। पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुई थी 1680 AD से लेकर 960 तक। इसलिए ये चाइना ने इंट्रोड्यूस कराई थी। ये हमारी आर्मी के हिसाब से बहुत फायदेमंद रही थी। ये इसने हमें बहुत फायदा दिया था, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पैदा किया था। ये हमारे को हर तरह से प्रॉफिट हासिल किया था इससे हमने। पेपर मनी हमारे को प्रॉमिस देती है, तो गवर्नमेंट की प्रॉमिस थी कि इसके बदले में सर्विसेज और गुड्स दे सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल रहा और इसलिए गवर्नमेंट बहुत तरक्की हासिल की। बट ये सिक्योर ऑप्शन नहीं था। हमें सिक्योरिटी चाहिए अपने मनी को लेकर कि ये मनी बहुत हमारा करवाया है तो हम सिक्योर करके रखते हैं। हम ऑनलाइन में आ गए। ऑनलाइन आज भी दौर है, बट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था। बट आजकल ये इतना कन्वीनियंट हो गया कि हम मोबाइल कहीं स्कैनर्स लेते हैं और अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। ये हमारे फोन में हमारा बैंक अकाउंट बन चुका है। हमारे मोर देन इससे सेव है, क्योंकि हर कोई को चोरी नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल हम कराची में रहना, ये है कि आप नहीं भी जाए आपकी बदमाशी नहीं मिलेगी, सिक्योर नहीं। बट केस के लिए बेटा आई करेक्ट यू कि सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, न्यूयॉर्क इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड जहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं, लंदन में होती है। पेपर मनी और बैंकिंग करने के लिए आपको ना बहुत चीज़ें चाहिए, बट आपको जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की आपको सिक्योर करता है, उनकी सर्विस हमेशा आपको एक सिक्योरिटी प्रदान करती है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें बताया गया है पैसा। ये हमारा जोर से बोलो। बैंकिंग सिस्टम के पेपर जब इजाद हुआ वो किस तरह से उसको
इसके अंदर हमें गगन देश आई के पास रखे तो वो मंदिरों में रखते थे हिंदुओं में रखते हैं, लेकिन फिर उनको जरूरत है कि हम अपना एक ऐसा इदारा बनाएं जिसके अंदर बतौर सारी फैसिलिटीज हों और उन्हें प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ATM और ट्रांजेक्शन एंड मैनेजर रूम, ब्रोकर्स, मीटिंग रूम, हेल्थ रूम, ये सब हमने इजाद किया, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की को रोक दी। और बैंकिंग ऐसा है हमारे पास सर तो मौजूद था कि हमारे पास हमने फिर बैंक आया तो उसके बाद हमें लोगों की सहूलत के लिए का कारोबार अमानत छाड़ देने की करने के लिए Good. Basically, that is more very nice. My name is We belong to the first year commerce. Our project is about trade and understanding internal and foreign trade. Next, there are two types of trade: home trade and foreign trade. Firstly, we describe home trade. Home trade, first step of home trade is production. जब हमारे पास कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो वो ट्रांसफर की जाती है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में उसे इनोवेट किया जाता है, एक प्रोडक्ट वहाँ से तैयार होता है, वो ट्रांसफर किया जाता है हमारे पास होलसेलिंग में। होलसेलिंग में लार्ज स्केल पे सेलिंग की और बाइंग की जाती है और इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है रिटेलर्स के साथ। रिटेलर्स के साथ जो कनेक्शन होता है, रिटेलर्स के पास हमारे पास जो स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट जाते हैं और वो रिटेलर्स जो डील करते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ डील करते हैं। And then there is another type of trade which is foreign trade, also known as external trade or international trade. So this is a trade जो कि दूसरे कंट्रीज के साथ की जाती है, दूसरे कंट्रीज के साथ की जाती है, यानी कि जो बाइंग और सेलिंग में जो प्रोसेस हो रहा है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ किया जा रहा है। And this foreign trade is further divided into two categories: import trade and export trade. So basically import is the process जिसमें जो एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री से कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करती है, यानी कि जैसे हमने पाक चाइना का रजिस्टर शो किया हुआ है यहाँ पर। पाकिस्तान जो है वो चाइना से इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट करता है, हैवी मशीनरी इम्पोर्ट करता है। एंड देन देयर इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज अ प्रोसेस जिसमें एक कंट्री जो है वो अपनी गुड्स या सर्विसेज दूसरी कंट्री को, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जो है वो चाइना को राइस एक्सपोर्ट करता है, स्पेशली बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है। Three types. There are three ways to transportation. हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तीन टाइप्स की जगह से देखा जा सकते हैं। बाय लैंड में हम ये रूट हमने दिखाया है, ये शो किया है कि सिर्फ शायरा क्रातम दिखाई गई है कि पाकिस्तान से जो चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही है वो शायरा क्रातम के जरिए उससे एक्सपोर्ट की जा रही है। और यहाँ पर हमने दिखाया है ट्रेन सिस्टम, रेलवे स्टेशन दिखाए हैं। यहाँ पर हम कंट्रीज़ के बिटवीन जो ट्रेड होती है उसमें रेलवे ट्रेड यूज़ करते हैं, जैसे कराची टू इस्लामाबाद और इंटरसिटीज में हम ये वाली ट्रेड बाय लैंड ट्रेड रेलवे ट्रेड बाय वाटर ट्रेड की जाती है, बाय एयर ट्रेड जाती है कार्गो। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड ये है कि हमारे पास इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट एंड मार्केट एफिशिएंसी बढ़ती है और ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री में कोई भी ट्रेड के जरिए बट हमारी साइंटिफिक क्रिएटिविटी है कि हमने ऊपर सितारे और सोलर पैनल पे डाले। What are the blocks? These are the buildings. China and Pakistan. And it is the border of China and Pakistan. Yes, Pakistan and Yes, China. And what is the vision? What's your vision of का दिखाया कि हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा विजन ये था कि पूरी ट्रेड। थैंक यू। Thank you.
मिस आप कुछ कहना चाहेंगी? I'm very thankful to my all students who have worked hard and through creativity and innovations they have produced the project. Thank you so much. That was the concept from your side The or concept the... about the trade, home trade. No, that was the innovation of your concept or the students. The thread. Students, they have given more ideas that through solar panels we can produce electricity. The aim of this is to have the free trade. Okay. The students are you happy, all of? We are. Okay. Congratulations. Thank you. Classes, any every student can be very much. How you submit? How submit to the teacher? No. After? No. They are not supposed to submit to the teacher. They are for self-learning. Self-learning. Learning of the student. When the teacher is not available and when the children are free, they can take the Self-assist. for that purpose. So can we say these are the past papers or like No, this? these are not past papers. These are not past papers. These are not. Shazia, you can. Actually, extra effort of the teachers. They are doing. These are the exercises made by the teachers. So she will already Self-assessment के लिए program she will बनाए जाते already हैं. she give these boxes for teachers. If she is not available in the class, the lecturers can take out the boxes and they will attend. So are you applying these methods in your class? Sometimes, but not in this way, but in another way. In other way you are applying these methods. काफी हेल्पफुल अगर टीचर्स ना कर तो अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं और जो फ्रंट कॉलेज लेवल तक अपना खुद सेल्फ असेस करते हैं तो आगे जो है उन्हें किसी टीचर की या किसी और की जरूरत नहीं पड़ती कि वो हमारे To check these papers. Scoring होती है इसमें. Self assessment, they will just giving at the back of the Okay, okay, so then they will tell you the answers. Because answers are already given at the back. Because there is I saw this exercise. There is the exercise, and now they can tell you the exercise from the back of the exercise. Okay. There is no need of the teacher. So in future, even they can so the government will either concept, they will not if they are mistakes, so they will correct themselves. Because in future they will want to wait for the other person to come and तो आप कहती हैं कि इसके बाद टीचर की जरूरत नहीं है? नहीं टीचर की जरूरत नहीं टीचर is always there to share the experience of themselves to the other and the learners are there. टीचर्स की इम्पोर्टेंस किसी तरीके से हम नहीं हो सकती. आप सब कुछ करके लेकिन टीचर का एक अच्छी प्रेजेंटेशन की है. 1, 2, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आना ज़रूरी है, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है वो प्रोजेक्ट ऐसे हैं कुछ कि आपको देखते ही समझ में आ रहा है. ठीक है, उनकी मेहनत भी नज़र आ रही है और उनकी डेप्थ भी नज़र आ रही है कि भाई ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी और आगे बढ़ सकते हैं. अच्छा, कई बच्चों की जो थी वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, यानी उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी. ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए थे 7, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जज करना है. और चूँकि ये प्रोजेक्ट्स भी आगे जाएंगे तो हम 3 और जज साहिबात में से मिस हमारी रिजवाना जो प्रोफेसर दीनार, और हमने जो रिज़ल्ट बनाया है उसके तहत आप ये प्रोजेक्ट्स में 3rd पोजीशन हासिल की है ज्योग्राफी. सेकंड पोजीशन मिली है लाइब्रेरी साइंस को. फर्स्ट पोजीशन है होम इकोनॉमिक्स. लेकिन सबने बहुत मेहनत की है और फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं. आप उनसे लर्न करें कि कहाँ आपकी शॉर्टकमिंग्स थी. आप भी वैसे कर सकते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं. डिफरेंट पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को लेकर जो है वो आप फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.
एक बात और ये बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए कि एक जैसी चीज़ों का कंपटीशन होता है तो आसान होता है ना, जैसे कि अगर साइंस का है तो उसमें साइंस की सारी चीज़ें, यहाँ है डिफरेंट फैकल्टी, तो उसमें थोड़ा सा मसला आता है कि एक जैसी चीज़ें नहीं जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं। या जैसे कॉमर्स का होगा तो हम कहते हैं कॉमर्स के सारे प्रोजेक्ट हैं इकोनॉमिक्स के सारे इकोनॉमिक्स के, या साइंस के तो सारे साइंस के। यहाँ सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन का अंदाज बदला हुआ है। तो इसलिए डिसाइड होने की जरूरत नहीं, सबने बहुत मेहनत की और आगे मेहनत करें तो और आगे बढ़ते चले जाएं। इसमें साथ करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं अपने प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर प्रोफेसर फौजिया परवीन से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज की तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रिंसिपल साहिबा प्रोफेसर मोहतरमा ज़ाहिदा परवीन, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, मोअज़्ज़ज़ फैकल्टी मेंबरान, प्यारे तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टील एग्जीबिशन के हवाले से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मैंने पर्सनली एक प्रोजेक्ट देखा और इसमें बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि हमारी तालिबात ने इतनी तफसील से एक्सप्लेन किया है। आर्ट्स एंड कॉमर्स की फील्ड किसी तरह पे कम नहीं है। बेसिकली हमारी सोसाइटी में मूव करने के लिए साइंस की फील्ड्स के साथ साथ आर्ट्स की सोशल साइंस में काउंट किया जाता है। आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल साइंस, इट इज़ वेरी हेल्पिंग टू मूव द सोसाइटी, कम्युनिकेट पीपल एंड अदर डिपार्टमेंट्स। Also compared to form, banking, law and order, everything. तो साइंस के साथ साथ आर्ट्स एंड कॉमर्स आगे चलकर सोसाइटी को मॉडर्न लेवल पे कम्बेट करते हैं। इस लिहाज से आज की जो लेटेस्ट मॉडर्न सोच यही है कि साइंस की स्टेम फील्ड में आप अपने आप को इस लेवल पे लेके आएंगे, अपने आइडियाज और थिंकिंग प्रैक्टिकल बेस पे अपने आप पेश करें कि आप क्या सोच रहे हैं साइंटिफिक वे में, उसका क्या होना चाहिए रीजनिंग। बेसिकली साइंस इज बेसिकली प्रूव थ्रू रीजनिंग एंड आर्ट्स और सोशल साइंस ये हमें फिलोसॉफिकल लॉजिक बताया जाता है। इसमें फिलोसॉफिकल लॉजिक थिंकिंग बताते हैं। तो इसी तरह से आर्ट्स की जो फील्ड से कॉमर्स के बगैर तो दुनिया आपको मालूम है कि चल ही नहीं सकती। कैपिटल, बैंकिंग, मार्केटिंग, ट्रेड, कॉमर्स, विदाउट दीज हाउ साइंस कैन रन। साइंस अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप में उसके साथ कनेक्शन नहीं है, कॉमर्स के साथ फील्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मीन्स की बेसिकली स्टेट कनेक्टेड ईच अदर। स्टेट मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है जिसको आपस में रास्ते के साथ ही चलाना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में जो बच्चों ने हमें बताया तफसील से, बहुत अच्छा लगा। और इसमें आप बच्चों को भी कुछ बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला। लाइब्रेरी साइंस के प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया कि कैसे पहले राइटिंग पैटर्न होता था, बच्चे के मतलब कैसे प्रिजर्वेशन कैसे की जाती थी। उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चीज़ आ गई, डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल लाइब्रेरी में चली गई। तो ये हमें सहूलियात फराहम की गई। इस तरह से हर एक प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आने वाले प्रोजेक्ट्स को और टीचर्स को बहुत मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की, बच्चों को भी स्टूडेंट्स को भी उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया। और इसके साथ साथ मैं जो जजेस हैं हमारी, उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने रूब्रिक के पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अपने जजमेंट दी। मैं मैडम ज़ाहिदा परवीन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू सो मच।
Bismillahirrahmanirrahim. Please be seated. Madam Fozia, Islamia College Principal, Islamia College, respectable faculty members and students, अस्सलाम वालेकुम। मैडम के कहने के बाद कुछ गुंजाइश बाकी नहीं रही। उन्होंने इतना अच्छा कंक्लूड किया तमाम प्रोसेस को कि व्हाट इज दिस टीम, हम क्यों कर रहे हैं, और द डिफरेंसेस बिटवीन आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। एंड हेड्स ऑफ टू यू, जितना अच्छा आप लोगों ने काम किया है। साइंस में काम करना थोड़ा इजी होता है क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत इजी होता है, वो प्रैक्टिकल फील्ड है, उसमें प्रैक्टिकल्स बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना इट्स वेरी इजी। बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इतना आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। हमने You are awesome. You are very intelligent and you have done a superb work. So, especially जो मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए इसमें winning और losing है ही नहीं, क्योंकि you all are winners. आपने participate किया, you all are winners for us. और जहाँ तक जजमेंट की बात है तो डेफिनेटली जजमेंट तो करनी थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज जस्ट अ रूटीन, ठीक है। इसको बिल्कुल भी इस तरीके से ना लीजिएगा। यू ऑल आर विनर्स। जिसने भी पार्टिसिपेट किया, जो यहाँ तक आ गया, स्टेज तक आ गया, वो विनर। एंड एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने बनाए, स्पेशली लाइब्रेरी साइंस मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। The way they have presented their project, it was excellent. Manasik-e-Hajj was excellent concept, and this commerce and geography awesome presentation, बड़ी ज़बरदस्त थी। concept को पूरा करना, आप लोगों ने तो देख लिया, आपने प्रेजेंटेशन भी सुन ली, लेकिन इसको बनाना, एग्जीक्यूट करना, प्रेजेंट करना, इसमें बहुत आपको एबिलिटीज और एनर्जीज की जरूरत होती है, जिसमें आपके टीचर्स डेफिनेटली आपके साथ खड़े होकर उन्होंने ये काम करवाया होगा। सो एक्सीलेंट वर्क यू हैव शोड। मेरे ख्याल में ये सारे आपके विनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और जब ये आगे जाएंगे हमारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तो डेफिनेटली हमारा कॉलेज विन करके आएगा। प्रोजेक्ट बनाने में इसके बाद सेकंड प्राइज विनर लाइब्रेरी साइंस की बच्चियां रेडी रहे, यहाँ आ जाइए विद टीचर मिस समीना। जजिस साहब काफी प्लीज ऊपर तशरीफ ले आए, प्लीज आवाज के साथ जी। बात करते हैं हम लोग।